afternoon, class 8. How are you all? Hope you all will be doing good in your home. So, welcome back, student. In the last class, which chapter we have started? Chapter number 13, sound. Okay, two part of the same chapter we have already completed. In the second part, we have discussed about the sound produced by humans and human ear, audible and inaudible sound. Everything we have completed. ठीक है? Now we are going to start in today's class part, our part 3. Reflection of sound, good and bad sound, noise pollution, hearing implements. These 2-3 topics were left, and this is the last part of the chapter. Let's start. Reflection of sound. Okay? As we all know, students, that light reflected, है ना, light strikes on a surface, it's reflect back. So similarly, when sound strikes on a hard surface, is also reflected. जैसे लाइट सरफेस पे पड़ता है तो वी ऑल नो दैट इट रिफ्लेक्ट्स बैक स्मूथ सरफेस पे. एज इट इज सिमिलरली साउंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन अ हार्ड सरफेस एंड इट रिफ्लेक्ट्स बैक. सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अनलाइक साउंड डज नॉट रिक्वायर स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस. ऐसा साउंड में कोई कंडीशन नहीं होता, बट लाइट में एक कंडीशन होती है कि लाइट को स्मूथ और रफ सरफेस में उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग होता है. Okay, and light follows the laws of reflection, but in sounds does not require a smooth and polished surface for the reflection. जैसे कि when you speak, the sound waves spread through the air in all the direction. The sound waves reaches our eardrums directly, and some waves strike the walls of the room. जैसे हम कभी बात करते हैं तो क्या होता है, जो साउंड जो होती है, it reaches the एयर में वाइब्रेशन जाता है, देन थ्रू द एयर इट रीचेस टू अवर ईयर ड्रम, देन वी विल हियर द साउंड वॉट एवर द साउंड इज, एंड सम साउंड स्ट्राइक्स द वॉल. द साउंड वेव्स दैट स्ट्राइक्स द वॉल गेट रिफ्लेक्टेड एंड रीचेस अवर ईयर ऑल्सो. वो जाके दीवार पे टकराती है और वापस हमारे कान में ही आती है. इन दिस केस ऑफ स्मॉल रूम्स, ये जो केस है ये सिर्फ एक स्मॉल रूम की बात हो रही है. ऑल द ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स रीचेज अवर ईयर्स अबाउट द सेम टाइम. सो ये कहना वो नहीं है कि द साउंड्स ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और इट नीड्स अ स्मूथ एंड रफ सरफेस फॉर रिफ्लेक्शन. ऐसा कुछ नहीं है. साउंड जैसे ही हम बोलते हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स में मिक्स होती है, जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे ईयर ड्रम्स को टच करती है, एंड देन वी विल हियर द साउंड. सेम एज इट इज़ वॉल को जाके स्ट्राइक करती है, फिर वापस हमारे कान में ईयर ड्रम में आती है, देन वी विल हियर द साउंड. And this happens in a small room. We are asking about, this is the example of a small room. So reflection of sound will be also there, but it doesn't need any smooth and solid surface as for light needs. Okay, now the next topic is good and a bad reflectors. अब good reflectors और bad reflectors क्या होते हैं वो देखते हैं. Come on, let's start this one also. Good and bad reflectors. Some of the objects behave as a good reflector of sounds, while some reflect as a bad reflectors of sound. Objects which are hard and have a smooth surface are good reflectors of the sound waves. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है बट उनका सरफेस क्या है, बहुत स्मूथ है, so they are said to be as good reflector of sound waves. Hard materials such as metal alloys, metal, steels, concrete, brick, walls and other dense material are good reflectors of sound, and the objects which are soft and porous are the bad reflectors of sound, like clothes, curtains, carpets, paper, wood, thermocol, asbestos sheets are the bad reflectors of sound waves. So they are actually good absorber of sound, not the reflectors. These smooth surface are the good because they absorb good sound. Okay, so whenever you go, कभी भी गए होगे अगर साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो वहाँ पे तुम देखते होगे कि सम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स वेयर यूज्ड ऑन द वॉल्स. ठीक है, in the ceilings, in the floors of the cinema hall, and the auditoriums are also covered with the sound absorbing materials like tiles, curtains, carpets, because they are the good absorber of sound. They makes possible to hear clear sound और वॉइस कमिंग फ्रॉम द स्पीकर ऑफ द वीडियो फिल्म्स. ये जो एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से हमको, अगर वो रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो आवाज़ गूंजने लगेगी, इको जो बोलते हैं हम लोग. लेकिन अगर वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अगर एब्जॉर्बिंग मटेरियल अगर सिनेमा हॉल्स में और साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में रहते हैं, देन वी विल एबल टू हियर द क्लियर साउंड.
Okay, so this is the good reflectors and the bad reflectors called. Okay, now everyone page 10, open page number 190. So this is good reflector and bad reflector. Now we are going to start the term eco. इको क्या होता है? जब हम किसी एकदम डीप वॉल, डीप जगह है, एकदम खाली रूम है, बहुत बड़ा सा हॉल है या डीप वैली में है, अगर वहाँ पे हम एम्प्टी हॉल है, वहाँ पे जाके हम चिल्लाते हैं या बोलते हैं, कुछ सेकंड के बाद हम लोग क्या देखेंगे, वो साउंड क्या करता है, कम बैक आता है, इको करता है, गूंजता है, जिसको गूंज बोलते हैं. ओके, सो एन इको इज द रेपिटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड harder after the sound is reflected from a distant, dense and rigid object such as high building and chief, etc. So echo is the repetition of the original sound. Okay, echo क्या है? repetition है original sound का. जब भी हम किसी deep valley में या hall में, जो vacant hall है, वहाँ पे अगर हम चिल्लाते हैं, तो after few seconds you will observe or you will hear the echo of the sound, the repetition of the sound. Okay, so the human ear hear two sounds separately only when they reach the ear after an interval of 1/10 of a second. दो साउंड कैसे सुन सकती है ह्यूमन ईयर? जब वो कुछ टाइम के इंटरवल के बाद आएगी, यानी 0.1 सेकेंड. इतने इंटरवल में भी हम दो साउंड सुन सकते हैं. जैसे हम बोले 0.1 सेकेंड हुआ, वो साउंड वापस से रिपीट होने लगती है, देन वी आर एबल टू हियर. This is the natural feature of the human ear. Therefore, the reflected sound which can be heard distinctly after a lapse of 0.1 second from the original sound by human ears is called an echo. Okay, so echo can be defined as, और यहाँ पे एक मैथमेटिक टर्म दिया हुआ है, जैसे कि डिस्टेंस ट्रैवल इन 0.1 सेकेंड. जो साउंड है उसकी स्पीड कितनी होती है ईयर में? 340 मीटर पर सेकेंड. एंड द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इको इज 0.1 सेकेंड. इतना हमको टाइम चाहिए तब वो साउंड इको होगी. ओके, बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द इको साउंड द डिस्टेंस विल बी 0.1 सेकेंड. नाउ देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल इन 0.1 सेकेंड इज 340 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 इज इक्वल टू 34 मीटर. दस द डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड इन 0.1 सेकेंड इज 34 मीटर. मतलब हम जैसे ही बोलते हैं 0.1 सेकेंड में हमारी साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है? 34 मीटर. ओके, दिस इज ट्वाइस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये ट्वाइस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और द सोर्स ऑफ द साउंड. जैसे कि हम बोल रहे हो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनके बीच में इसको ट्वाइस करना रहता है. तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर द इको, अब उसको ट्वाइस करना है तो 34 इंटू 2 कट करेंगे 17 मीटर आएगा. सो दिस इज़ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द, मतलब हमको इतनी दूरी पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, जाके वापस आना, ये तो ट्वाइस हुआ ना. इको कैसे करता है, हमको सुनाई कैसे देता है? पहले साउंड जाती है, फिर वो साउंड वापस आके हमको सुनाई देती है. तो ये ट्वाइस में वर्क हो रहा है. मतलब हम लोग को 17 मीटर की दूरी पे रहना पड़ेगा जो साउंड रिफ्लेक्ट करेगा इको करने के लिए आवाज़ को. ओके, सो दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ इको. So the essential conditions are the minimum distance between the source of the sound and the reflecting surface will be 17 meter, as I told you. The sound is loud enough to be heard after the reflection. इतना ज़्यादा ज़ोर से बोलो कि reflection के बाद हमको सुनाई दे. Third, there is a high building or hill which can be act as a reflecting surface. So these are the three important conditions for echo of the sound. Okay. Now science in life. Do you know everything is given? चलो उसको एक बार देख लेते हैं. Echo are used by the doctors to get a picture of internal organs of the body. हमारी बॉडी में जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, जब डॉक्टर जो बेबी होता है उसको देखने के लिए, तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं इकोस को. इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट के टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं. तो दिस इको इज़ यूज्ड फॉर दिस अल्ट्रासोनिक ऑफ अवर बॉडी लाइक इन अल्ट्रासोनोग्राफी एंड इकोकार्डियोग्राफी. एंड दिस गोलकोंडा फोर्ट नियर हैदराबाद. गोलकोंडा फोर्ट है हैदराबाद में, वहाँ पे तुम इको बहुत अच्छा देखोगे. वहाँ पे एक हॉल है, दरबार हॉल, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फोर्ट अबाउट किलोमीटर्स अवे. अगर तुम वहाँ पे मतलब कुछ बोल रहे, गोलकोंडा फोर्ट वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट फोर्ट इन इंडिया, फेमस फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट. मतलब वो इतना ज़्यादा सुंदर बनाया गया कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है. अगर तुम वहाँ पे सिर्फ क्लैप करते हो अंडर द डोम, इकोज हर्ड इन द दरबार हॉल. मतलब इतनी दूरी पे तुमको इको उसका सुनाई देगा अगर तुम उसके डोम में क्लैप करते हो. सो दिस वाज डिवाइज्ड एज वार्निंग सिस्टम.
मतलब ये कैसे बनाया गया था कि अगर वहाँ पे सिग्नल के लिए, वार्निंग सिस्टम, सिग्नल के लिए अगर वहाँ पे कोई क्लैप करके या कुछ हरकत कर रहा है तो दरबार हॉल में सुनाई देगा। मतलब वो वहाँ पे ऐसा टेक्निक बनाया गया था उस जगह पे कि फर्दर अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती कभी फॉल्ट में तो राजा महाराजा उसको अपने एक टेक्निक को यूज़ करने के लिए बनाए थे ऐसा, ठीक है। नाउ साउंड्स एंड रोबोटिक्स आर ऑल्सो रिलेटेड। कैसे? Robots are designed in such a way that they respond to the simple sound like clapping of the hands. A sophisticated robot can be respond to the sound instruction given by human voice. So robot को भी ऐसे डिवाइड, ऐसे मतलब उसको डिज़ाइन किया जाता है कि वो ह्यूमन के साउंड से वर्क करे, ठीक है, रिस्पॉन्ड करे। ओके, दे रिस्पॉन्ड टू द सिंपल साउंड लाइक क्लैपिंग, हम बोल रहे हैं उनके ईयर तक पहुँचे और उसके ऊपर वो क्या करें, work करें with the help of microphones. Simply microphones and sensors were attached in their ears, so they can help with the help of this microphone sensors. हम उनको कुछ ऑर्डर करेंगे तो वो उस पर वर्क करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, दिस इज साउंड्स एंड रोबोटिक्स। क्लियर हो गया ये टॉपिक? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नॉइस एंड द म्यूजिक। डिफरेंस बिटवीन द नॉइस एंड द म्यूजिक। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड द म्यूजिक? लेट्स स्टार्ट दिस वन ऑल्सो। सो अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड्स, वेरी लाउड साउंड्स आर कॉल्ड एज नॉइज। एज वी ऑल नो दैट जो अनवांटेड जो हॉर्न्स हैं फैक्ट्रीज में, लाउड स्पीकर्स में जो अननेसेसरी साउंड जो बजते हैं, दे आर अनप्लीजेंट टू आवर ईयर्स, सो दे आर सेड टू बी एज नॉइज, ठीक है। अब म्यूज़िक किसको बोलते हैं? जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे से साउंड निकलता है, लाइक प्लीजेंट, विच आर वेरी सॉफ्ट एंड विच आर वेरी हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा मतलब काम होते हैं हमारे ईयर्स के लिए, दे आर सेड टू बी एज म्यूज़िक, ठीक है। ये म्यूज़िक और साउंड में डिफरेंस होता है। सो म्यूज़िक प्रोड्यूस बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन एंड नॉइज इज प्रोड्यूस बाय इरेगुलर एंड नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस होता है? नॉन पीरियोडिक और इरेगुलर से साउंड से क्या प्रोड्यूस होता है? नॉइस। और म्यूज़िक कैसे प्रोड्यूस होता है? रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द साउंड। ओके, so this is noise and music. Now here are different instruments are given in your book कि कैसे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, फिर भी एक बार दिया हुआ है तो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एज वी ऑल नो हाउ द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट साउंड। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेट start this one. So they produce very pleasant sound. Okay, there are 5 main types of musical instruments depending upon their air vibration in them. अब air vibrates कैसे करता है वो देखते हैं. So first one is stringed instruments. जिस instruments में string लगा होता है जैसे गिटार, violin, वीणा and सितार, सारे string instruments हैं. In a stringed instrument, music is produced by vibrating a string. जैसे ही तुम string को vibrate करोगे, these are made up of generally metal wires. They will start vibrating. Okay, vibrate करना start कर देते हैं. When the strings are plugged, struck or played with a bow, they start vibrate and produce a music sound. Okay, these instruments have also hollow air chamber with the help of increase the loudness of the produce. जो उनका अंदर का जो chamber होता है वो बिल्कुल hollow होता है कि वो loud music produce कर सकें. Okay, now the second one is the wind instruments. When you blow, these musical instruments are generally made in फ्रॉम द पाइप्स. विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब पाइप, जैसे जैसे बांसुरी हो गया, सहनाई हो गया, ट्रम्पेट हो गया, पाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. व्हेन यू ब्लो एयर इनटू देम, द कॉलम ऑफ अ एयर इनसाइड वाइब्रेट्स प्रोड्यूस्ड अ नोट. जैसे ही तुम उसमें एयर ब्लो करोगे, वो जो एयर कॉलम है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट होंगे और एक नोट प्रोड्यूस करेंगे. तब उसको हम लोग बोलेंगे अ साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. उनका पिच इतना होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ओके, लाइक विसल, फ्लूइड, सहनाई, bugle, saxophone, trumpet, nadaswaram etc. are the example of wind instrument. Now the percussion instruments बोलते हैं. So in a percussion instrument, a vibrating skin or membrane produce a musical sound. जैसे ड्रम हो गया, मदरंग हो गया, तबला, एक वाइब्रेटिंग स्किन होता है. जब तक उसमें तुम अपने हैंड से क्या बोलना चाहिए उसको बजाओगे नहीं, उसमें ड्रम नहीं करोगे, तब तक वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है. दे हैव अ स्किन टू प्रोड्यूस अ साउंड. ओके, दीज आर द प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट. नाउ फोर्थ वन इज द रीड इंस्ट्रूमेंट. So these instruments like harmonium, mouth organ are called the reed instruments. Reed instruments contain metal reeds which produce sound when air is blown through them. Mouth organ हो गया, हारमोनियम, जब तक उसमें तुम
they are made up of metal reeds which produce sounds when air blown through them. जब air उसमें blow करेगा then they will produce sound. So these are the instruments which produce different types of sound. Next one is घना वैद्य. घना वैद्य एक और दिया हुआ है इसमें, ले चलो इसको पढ़ते हैं. These instruments like मंजीरा, cymbals, जल तरंग, घंटाम, mud pot and the करताल are simply beaten or struck to produce musical instrument. ये जो स्टेप के इंस्ट्रूमेंट है उसको सिंपली तुम बीट करते हो तो वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड विद डिफरेंट वे. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेज नंबर 192. फर्स्ट वन, इन गिटार म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग string. Okay, string, option number A is correct. Second, which of the following is not a string instrument? Sehnai is not a string instrument. It is a wind instrument. Third one, which of the following is a percussion instrument? Manjeera, harmonium, tabla and saxophone. Tabla is a percussion instrument. Okay. Now, the repetition of sound when we shout in front of a rigid object is called echo. अभी echo ही पढ़ रहे थे. Now fifth, noise is produced by dash vibration. Regular, periodic, non-periodic, smooth. It is non-periodic. Sorry, मैंने उसको regular कर दिया. It is irregular and non-periodic. तो C, option number C is correct students. मैंने A किया है, A1 is the wrong. It is non-periodic vibration. ठीक है. So this internal question is also completed. Now start the noise pollution. We are going to start the noise pollution, second last topic of the chapter. Okay. So as we all know that what is noise pollution? Noise from any source that causes disturbance in our ear, discomfort of any kind in the environment is called noise pollution. जैसे कि loud music हो गया system, aeroplanes, loudspeakers, motor horns, crackers, moving train, these all are the source which causes disturbance and discomfort to our ears. This is said to be as noise pollution. So a sound of 90 decibel and above heard for a long time causes noise pollution. जो 19 डेसिबल से अबव साउंड होता है वो हमारे ईयर को कॉज करता है नॉइस पोल्यूशन, उसको नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है जब वो ज़्यादा टाइम के लिए बजने लगता है. सो हियर आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन. It creates many health hazards. So let's discuss the harmful effects. It causes nervous tension, irritation, earache, headache and high blood pressure. As we all know that it may causes lack of concentration in work and studies. Also this noise pollution causes work stress and everything. Fourth, loud music during night disturbs our sleeps. This is also correct. Fourth, prolonged exposure to high level noise can affect the eardrum and may lead to temporary or even permanent loss of hearing. ये भी होता है, हमको पता है. This type of things were happened. Now, so here are 4 important harmful effects. Now there are measures to reduce the noise pollution. अब यहाँ पे problem है तो उसका solution भी होता है. Some are the solutions are there. Let's discuss it. Automobiles should be fitted with silencer and soft horns. ये एक सबसे अच्छा मेजर्स है कि जो ऑटोमोबाइल्स है वो उसमें साइलेंसर लगा हो और वो उनमें जो हॉर्न हो वो सॉफ्ट हो. सेकेंड, हॉर्न्स ऑफ द मोटर एंड मोटर व्हीकल शुड बी ब्लोन अननेसेसरली. द हॉर्न्स शुड बी नॉट टू बी ब्लोन एट ऑल नियर साइलेंस जोन. हॉस्पिटल्स है ना, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम्स, स्कूल, these are the silence zones, वहाँ पे ये हॉर्न नहीं बजाना चाहिए. नाउ थर्ड वन, you should not play radio, television and stereo system too loudly. This is for you all people, new generation. Now airports and noise making factories should be shifted away from the residential area of the city. जो भी residential area है ये सब चीज़ दूर दूर पे बनने चाहिए उससे. Now the use of loudspeaker at social and religious functions should be restricted. जो आज की डेट में हर जगह डीजे वगैरह बजने लगता है, अगर दुर्गा पूजा है कुछ भी है तो ये सारी चीज़ों को बैन करना चाहिए. वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक इन कार्स एंड अदर व्हीकल्स वाइल ड्राइविंग. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. 7, machine should be maintained to be in a good condition to reduce the industrial noise pollution. And 8, avoid bursting crackers that make a loud noise. So here are the 8 measures to reduce the noise pollution. In table 13.3 students, there is a difference between noise and music. You have to write this table in your copy. This is your homework. You have to write the table and learn it in your
write it in your copy and learn it. Okay, difference between noise and the music. Now the last topic of the chapter is hearing impairment. Hearing impairment क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं. When a person cannot hear properly or lost his or her hearing ability, he or she is said to be as hearing impaired. अब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना जो अच्छे से सुन नहीं पाते और अपनी जो सुनने की शक्ति होती दे लॉस्ट इट टोटली, सो दे आर सेड टू बी एज हियरिंग इम्पेयर्ड. सो देयर आर मैनी रीजन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट. जैसे क्या होता है, कुछ लोग बॉर्न होते हैं, पैदा ही बहरे होते हैं, दे आर नॉट एबल टू हियर. और कुछ लोगों की क्या होती है, दे आर बॉर्न विद वेरी प्योर हियरिंग, सो दिस इज कॉल्ड टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट. And there the person is said to be as suffering as a deaf. So deaf people often use the sign language of their hands to communicate with other effectively. अब क्या करते हैं वो लोग, तो सुनने की शक्ति उनकी टोटली ख़त्म हो जाती है, तो हाउ दे पीपल वेयर रिस्पॉन्ड टू अर, तो वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हैंड से जो साइन लैंग्वेज बनता है उसको यूज़ करते हैं. दे आर सेड टू बी एज टोटल हियरिंग इम्पार्टमेंट एज अ डेफ. ओके. नाउ पार्शियल हियरिंग लॉस अकर्स जनरली ड्यू टू एन इलनेस. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग तो पैदा ही बहरे होते हैं, डिफ होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सम पीपल पार्शियली दे हैव पार्शियली हियरिंग डिसेबिलिटी, लाइक कभी कभी ड्यू टू द इलनेस, ईयर इन्फेक्शन, इंजुरी, ओल्ड एज और नॉइस पोल्यूशन. दीज आर द रीजन ऑफ पार्शियल हियरिंग लॉस. So a person suffering from partial hearing loss can hear sounds properly by using hearing aids. Hearing machine आती है, उसको use करने से the people were able to hear properly. Okay, so this technology device for hearing impaired have made it possible for such person to improve their quality of life. अभी hearing aids को क्यों बनाया गया है? ऐसे लोगों के लिए जो सुन सकते हैं लेकिन थोड़ा उनकी hearing ability क्या है, कम हो गई है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं एंड दिस मेक्स देयर लाइफ हैप्पी. सो दिस इज कॉल्ड एज हियरिंग इम्पेयरमेंट. ओके स्टूडेंट, so this chapter is completed. We have successfully completed the part 3 portion. Hope you all understood the chapter very clearly. मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ हर वीडियो में, आफ्टर द completion of video just read the chapter once. Okay, just read the chapter once. वीडियो सुनने के बाद अगर चैप्टर को रीड करोगे तो ईजिली समझ में आएगा कि what I am trying to say. Okay, so you people must read the chapter after the completion of video. ठीक है class? So thank you so much class. See you all in the next class and complete your work, read the chapter and whatever the doubt you have related to the chapter just ask to me. Okay, now thank you so much class. See you all in the next class with a new chapter.